Hello student, welcome back to my channel Fear of Maths Atail Maza. In this video we will see mathematical logic, that is definition of statement. So very first, definition of statement. What is statement? A statement is a declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously. For example, 6 is a prime number, or Delhi is a capital of India, etc. Next, we see the truth value of a statement. That is, every statement must be either true or false. If the statement is true, we say that its truth value is true, that is capital T, and if it is false, then its truth value is capital F. Now here, student, note some points. That is, note number 1, one can use 1 and 0 for capital T and capital F respectively. Note number 2, statements are denoted by lower cases letters, that is P, Q, R, etc. Note number 3, sentence which are imperative, exclamatory or interrogative are not statements. Next, we see very important, that is logical connectives. So logical connectives means what? The words or group of words like and, or, not, if, then, if and only if can be used to join two simple statements. Such words or groups of words are called the logical connectives or simply connectives. Now next, the statements that are formed by combining two or more than two simple statements by using the logical connectives are called compound statement. Compound statement. Now see the very important table for logical connectives. Now number 1, we have connective and its symbol is like this. Terms used to describe the compound statement, that is conjunction. Now next, or and its symbol, not and its symbol, if then, if and only if. Now and is called the conjunction, or is called disjunction, not is called negation, if then is called conditional or implication, if and only if called biconditional or equivalence or double implication. Next, we will see the truth table for all the logical connectives. So very first we see what is truth table. Truth table is nothing but a tabular device to obtain the truth value of a compound statement. Now see student, very first the truth table for conjunction. So here we have the first truth table for conjunction. So in this table, if we observe that here T and T is always equals to T, that is T, P and Q is true only when both P and Q are true. So first table is conjunction. Now see second table, that is disjunction. In this table we observe that F or F is equal to F and other combinations are T. So here we can say that P or Q is false only when both P and Q are false. Next we have truth table for negation, and it is very simple. Now the negation of T is always F and negation of F is always T. So next, truth table for conditional. In conditional, T implies F is always equals to F and other combinations are true. And last, biconditional. In biconditional, T double implies T is always T and F double implies F is also equals to T. So let's start student mathematical logic, but before that don't forget to like and subscribe my channel. तो हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू सी मैथमेटिकल लॉजिक. बेटा मैंने स्लाइड्स पे आपको मैथमेटिकल लॉजिक्स के बेसिक्स टर्म्स, ट्रूथ टेबल, लॉजिकल कनेक्टिव सारा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. ओके, सो आप वो सारे स्लाइड्स
पॉज करके अच्छे से उसको समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको वो स्लाइड्स और अच्छे से समझ में आए। सो मैंने सबसे पहले बेटा आपको बताया है कि व्हाट इज़ स्टेटमेंट। लॉजिक में सबसे पहले जो वर्ड आता है बेटा दैट इज़ स्टेटमेंट आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होता क्या है। स्टेटमेंट मैंने आपको ये बताया, स्टेटमेंट इज़ नथिंग बट द डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस विच आर आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। सो ये ऑब्वियस है बेटा, कोई भी एक स्टेटमेंट जो रहेगा, एक तो ये ट्रू रहेगा नहीं तो ये फॉल्स रहेगा। सपोज़ मैंने बोला दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आती है कि सर ने जो स्टेटमेंट बोला है, एक तो ये सही हो सकता है नहीं तो ये गलत। ठीक है, तो हमारे इस केस में दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये ट्रू है। अब ये फॉल्स भी हो सकता था, है ना, लेकिन एक साथ दोनों भी नहीं रहेंगे बेटा। सो ये होता है स्टेटमेंट का मतलब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमको डिक्लेरेटिव सेंटेंस समझ में आते हैं। बेटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज नथिंग बट इट इज़ एन ओपिनियन, आर्ग्यूमेंट्स बोल सकते हो आप इसको, ओपिनियन एंड आर्ग्यूमेंट्स और डिक्लेयर्स। ठीक है, और ये क्या हो सकते हैं, विच इज़ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता है बेटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस बच्चों के दिमाग में ये होना चाहिए विच इज़ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ बताई है बेटा कि आपको जो स्टेटमेंट है जो आपकी, हम लोग जनरली स्मॉल लेटर्स और लोअर केस लेटर्स दैट इज़ PQR से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर लॉजिक का एप्लीकेशन करना है। सो बेटा एप्लीकेशन में आपको 1 और 0 का काम पड़ता है। तो स्विचिंग सर्किट आप जब पढ़ोगे तो स्विचिंग सर्किट में जब आपका स्विच जो है वो ऑन रहता है तो हम लोग उस ऑन को 1 से डिनोट करते हैं, है ना। आपका स्विचिंग सर्किट अगर ऑन है तो उसको आप 1 से डिनोट करोगे। आपका स्विचिंग सर्किट अगर ऑफ है तो आप उसको 0 से डिनोट करोगे। सो एप्लीकेशन में आपको ये वाले पॉइंट भी ध्यान में रखने हैं। देन इसके बाद बहुत काम का चीज़ बेटा, आपको स्टेटमेंट में कौन से सेंटेंस लेने हैं और कौन से नहीं। तो मैंने आपको बताया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नेक्स्ट इम्परेटिव, नेक्स्ट इंटरगेटिव, ये वाले सेंटेंस आपको नहीं लेना है। तो बहुत सारे बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है सर ये कौन से है। सो बेटा आपको शॉर्ट पे मैं बता दूं, क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप क्वेश्चन करते हो व्हाट इज़ योर नेम, सो ये स्टेटमेंट नहीं है। एक्सक्लेमेटरी, वाओ जैसे बोलते हैं आप वाओ, तो ये वाले आपको स्टेटमेंट में कंसिडर नहीं करना है। इसके बाद रिक्वेस्ट वाले, गिव मी अ पेन, जहाँ आप रिक्वेस्ट करते हो ये भी आपको स्टेटमेंट में कंसिडर नहीं करना है। उसके बाद में कमांड है ना, गो देयर, वहाँ जाओ, तो ये कमांड दिया आपने, तो ये वाले भी स्टेटमेंट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या क्या नहीं आ रहा है ये समझ लो आप। क्वेश्चन वाले सेंटेंस नहीं आ रहे, एक्सक्लेमेटरी वाले नहीं आ रहे, रिक्वेस्ट वाले नहीं आ रहे, कमांड वाले नहीं आ रहे, ऑर्डर वाले, इतने सेंटेंस आपको स्टेटमेंट में कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो ये बड़े काम की चीज़ है। इसके बाद मैंने आपको बताया है लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो देयर आर 5 बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव्स। ये वर्ड्स है बेटा, डे टू डे लाइफ में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इसको बोला जाता है लॉजिकल कनेक्टिव्स। आप और यूज़ करते हो, इंग्लिश में उसको एंड बोला जाता है। आप या यूज़ करते हो, हिंदी में उसको या, इंग्लिश में उसको और बोला जाता है ना। आप बोलते हो नहीं मतलब निगेशन, नॉट। सो ये जो सारे वर्ड है, कंडीशनल, इफ़ देन, इफ़ एंड ओनली इफ़, सो ये सारे जो वर्ड्स है और ये जो ग्रुप है इसको बोला जाता है लॉजिकल कनेक्टिव्स। सो देर आर 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स। नंबर 1 पे आता है आपका एंड। सबसे पहले आता है बेटा आपका एंड, तो आप इसको शॉर्ट में ध्यान में रखोगे और एंड की सिंबल मैंने आपको बताई है ऐसे। ठीक है, तो ये है बेटा एंड। इसके बाद में आता है और। सो और की सिंबल जो है इसको उल्टा कर दोगे तो ये आपका और बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा नॉट, ये इसकी सिंबल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा इफ़ देन। नेक्स्ट जो आता है बेटा लॉजिकल कनेक्टिव्स दैट इज इफ़ देन, तो इसको आप डिनोट करोगे एरो से। मैंने एरो यहाँ यूज़ कर लिया है, डबल एरो लगा दिया, आपको कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट आता है बेटा इफ़ एंड ओनली इफ, इसको शॉर्ट में लिखोगे ऐसे, रीड करते हैं इसको इफ़ एंड ओनली इफ, इसको कंडीशनल
ये कंडीशनल है और ये बाय कंडीशनल है, क्योंकि यहाँ डबल एरो आ गया है। सो ये है बेटा मैथमेटिकल लॉजिक, और लॉजिक में सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिकल कनेक्टिव्स, और सिंपली कनेक्टिव्स बोला जाता है बेटा इसको। ये कनेक्टिव्स है, आपके सारे बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये कनेक्टिव्स का काम क्या है, कनेक्टिव्स का काम क्या है बेटा, ये क्या करता है, स्टेटमेंट को क्या करता है, कंबाइन करता है। वन और मोर देन वन स्टेटमेंट कंबाइन करता है लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है। सो अभी आपको क्या होगा, एक स्टेटमेंट गिवन रहेगा, फिर उसके साथ में एक और स्टेटमेंट हम कंबाइन कर दोगे, तो ऐसे स्टेटमेंट को आप कंबाइन करते जाओगे। सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट को बोला जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। स्लाइड्स पे मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताई है। सो आपके सिलेबस में जितने भी आपको स्टेटमेंट दिखेंगे वो सारे के सारे बेटा कंपाउंड स्टेटमेंट रहेंगे, क्योंकि वो मोर देन वन लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। सो ये ध्यान में रखोगे आप, ये लॉजिकल कनेक्टिव्स बड़े काम के। इसके बाद में ये जो लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं बेटा, इसके ट्रुथ टेबल होते हैं, इसके रूल्स होते हैं। ये सारे रूल्स मैंने आपको स्लाइड पे बहुत अच्छे से मेंशन किया है, फिर भी आप एक शॉर्ट में कंजंक्शन का यहाँ पर अच्छे से समझ लो और बाकी के आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो स्लाइड्स पे आपको समझाने का मेरा पर्पज़ ही ये है कि सपोज़ मैं कोई पॉइंट अगर स्किप कर देता हूँ बेटा, तो आप स्लाइड से उसको देख के आप उसको मॉडिफाई करके वो चीज़ समझ सकते हो, ठीक है। सो ध्यान से देखोगे कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल, मैंने आपको साथ ही साथ ट्रुथ टेबल क्या होता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बेटा। ट्रुथ टेबल क्या करता है, आपको ये कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू बताता है, ठीक है। अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो आप उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हो, मैंने देखो आपको ये चीज़ बताया था। एंड आपका स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो आप उसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हो, ये चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रू स्टेटमेंट, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो आएगी बेटा कैपिटल टी आएगी। 6 इज़ अ प्राइम नंबर, 6 इज़ अ प्राइम नंबर, फॉल्स, तो इसकी वैल्यू जो आएगी कैपिटल एफ आएगी, ओके। सो ऐसे आप ध्यान में रखोगे। सो कंजंक्शन का मैं आपको सबसे पहले ट्रूथ टेबल बताता हूँ। ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन, ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन, बेटा कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल देख लोगे आप अच्छे से, और बाकी सारे ट्रूथ टेबल आप स्लाइड से देख लोगे, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन, सो बेटा क्या करते हैं हम लोग, पी और क्यू दो स्टेटमेंट कंसिडर कर लेते हैं। लेट पी एंड क्यू बी एनी टू स्टेटमेंट, ये दो कोई तो भी स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हमको कंजंक्शन डिफाइन करना है, सो आप लिखोगे पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, ओके। सो अब क्या करते हो, फर्स्ट कॉलम में बेटा हमेशा याद रखो, फर्स्ट कॉलम में जो एंट्रीज आएंगी इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आता है बेटा 2T एंड 2F, इसको आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। कैसा कॉम्बिनेशन लेना है, 2T एंड 2F। नेक्स्ट TF TF, ऐसे कॉम्बिनेशन लोगे, ठीक है। इसके बाद में आपको डिफाइन करना है P एंड Q। सो P एंड Q, T एंड T इज़ ऑलवेज T, ये आपका रूल है बेटा, और इसको ऐसे आप मार्क कर लोगे। T एंड T इज़ ऑलवेज T एंड अदर कॉम्बिनेशंस आर फॉल्स, बेटा बाकी के सारे कॉम्बिनेशंस क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, बेटा मैं आपको ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि सारे टी एन टी इक्वल्स टू टी हो जाएगा, ठीक है, और बाकी के कॉम्बिनेशन सारे एफ हो जाएंगे। सो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। बेटे जनरली क्या होता है जब आप इसका एप्लीकेशन करोगे, मैंने एप्लीकेशन में आपको बताया है कि ट्रू जो होता है आपका, ट्रू जो होता है ये 1 होता है, टी की जो वैल्यू रहती है बेटा हमेशा 1 लिया जाता है, ठीक है। आगे एप्लीकेशन में आपको करना है, और फॉल्स जो रहेगा आपका 0 रहेगा। मतलब इस केस में आपका स्विच जो है ये ऑन है, स्विचिंग बोर्ड आपने सबने देखा है ना, उस स्विचिंग बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं बेटा। अगर आप इसको ऑन करोगे, लाइट आपका ऑन हो जाएगा घर का, तो इसकी वैल्यू जो रहेगी 1। अगर आपने घर का लाइट बंद कर दिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। सो यहाँ अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, एंड जो होता है बेटा कंप्यूटर साइंस में, एंड जो होता है ये होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। एंड को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पर, अगर आपको इसको अच्छे से समझना है, वाई वी गेट टी एंड टी इक्वल्स टू टी, सो ये आ जाएगा 1 बेटा, ये आ जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0, ये आएगा 1 0 1 0, ठीक है। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। सो आप जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा 1 इंटू 1
इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1, इसीलिए ये t का वैल्यू जो है ये 1 आएगा। इसीलिए t एंड t इक्वल्स टू टी होता है, क्योंकि 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 होता है। सो इसीलिए t एंड t इक्वल्स टू टी होगा। अदर कॉम्बिनेशन आप देख लो, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ 0, तो ये आ जाएगा बेटा फॉल्स। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, इसीलिए बेटा ये आता है 1 0 0। ठीक है, ऐसे ही इसको लर्न करोगे तो आपको जल्दी से याद रहेगा। वाई वी गेट टी एंड टी इक्वल्स टू टी, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टी एंड टी इक्वल्स टू टी क्यों आता है। सो ये है बेटा इसका रीज़न। ठीक है, तो आप उसको 1 0 में करके देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसके बाद में आपका डिसजंक्शन आता है। डिसजंक्शन मतलब होता है आपका और मतलब होता है एडिशन। ठीक है, तो वहाँ से आप भी वहाँ से जो एफ और एफ आता है आपका, एफ और एफ इक्वल्स टू एफ, मतलब 0 + 0 इक्वल्स टू 0 होता है बेटा। बाकी के कॉम्बिनेशन सारे 1 1 1 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो स्लाइड से आई होप आप वो स्लाइड से वो सारी चीज़ें समझ लोगे बेटा, उसको पॉज करके समझोगे। एक मैंने आपको डिटेल में ये एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, सो ये ट्रूथ टेबल है किसके लिए बेटा, कंजंक्शन के लिए। इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं सारे रूल आपको शॉर्ट में जल्दी से कैसे इसको लर्न करना है ये मैं आपको जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको ये रूल्स कैसे लर्न करना है। तो टुमारो वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑन लॉजिकल कनेक्टिव्स। सो बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हमारी हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव से क्वेश्चन ले पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट में इसको लर्न कैसे करना है आप ये देख लो बेटा जल्दी से। टी एंड टी इज़ ऑलवेज टी, ये आपका रूल नंबर 1, इसको नहीं भूलोगे बेटा। टी एंड टी इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू टी एंड अदर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू फॉल्स, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। चैप्टर का नाम ही है मैथमेटिकल लॉजिक, लॉजिक लगाना पड़ेगा बेटा, सोचना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका एफ और एफ। एफ और एफ इज़ ऑलवेज एफ, कैसे आता है मैंने आपको 1 0 से ये एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप इसको भूलोगे नहीं। नेक्स्ट, ये स्लाइड पे मैंने मेंशन नहीं किया बट अच्छे से देखोगे, निगेशन ऑफ टी इज़ ऑलवेज एफ एंड निगेशन ऑफ एफ इज़ ऑलवेज टी। ठीक है, ये स्लाइड पे ट्रूथ टेबल नहीं है तो इसको नोट कर लो बेटा। निगेशन है, टी का निगेशन क्या होगा, हमेशा एफ होगा, और एफ का निगेशन हमेशा क्या होगा बेटा, टी होगा। नेक्स्ट, बड़ा काम का, और ये बड़ा कंफ्यूज करता है बेटा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करोगे। टी इम्प्लाइज एफ इक्वल्स टू एफ, ये वाला रूल को ऐसे बॉक्स में डाल लोगे बेटा। टी इम्प्लाइज एफ इज़ ऑलवेज एफ। ठीक है, ये है इम्प्लाइज। एंड लास्ट, टी डबल इम्प्लाइज टी इज़ ऑलवेज टी एंड एफ डबल इम्प्लाइज एफ ऑल्सो इक्वल्स टू टी। ये है बेटा आपके लॉजिकल कनेक्टिव्स और ये है इसके रूल्स। ये रूल्स अगर आप लर्न कर लोगे सो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।